Morning. Good morning, everyone, and welcome to today's session. Day 4 we'll be doing in magic. I, Poonam Modi, and Priya will be taking the session today on behalf of Deepti ma'am. And I shall be sharing the magic book, and Priya will be sharing the creative visualization. Thank you, everyone, for coming on this beautiful Sunday morning. I shall be sharing the screen now. Yes, we can all see the screen, right? So today is a very beautiful, chapter assignment. Priya, Dushant will be reading. Yes, ma'am. Dishant. Dishant, Dishant, are you there? Yeah. Dishant, are you there? I don't know. He hasn't logged in, I think. अभी He तक has. तो नहीं है. ठीक है, Hmm. ठीक है. चलो अभी इधर हम शुरू करते हैं. And probably Dishant. Yes, ma'am. ठीक है. सो टुडे इज डे 4 मैजिकल हेल्थ. हमने अभी हमारा 4th डे है ये न्यू जर्नी शुरू करने का. एंड हमने कल मैजिकल रिलेशनशिप्स करे. आज हम मैजिकल हेल्थ कर रहे हैं, जो कि हम सबको पता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है. हेल्थ है तो सब कुछ है. और इसमें फोटोग्राफ में भी दिखाया है कि जैसे ना पहले के समय में ऐसे ही डॉक्टर्स अपना बैग लेकर जाते थे, और ये एक कोई लैब रूम होगा जिसमें कि स्केलेटन 3 स्केलेटन के मतलब एक्सरे, बेसिकली एक्सरे पड़ा हुआ है और मैजिक निकल रहा है. पानी पानी दिखाया हुआ है और टेबल दिखाया हुआ है, स्टेथोस्कोप दिखाया हुआ है. बेसिकली कि ये हमारी हेल्थ का मतलब ये हमारे मैजिक निकलता है. हम जब अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो बेसिकली हमारी लाइफ मैजिकल हो जाती है. सो let's read today. Dishant, have you logged in? Yeah, anyone who No, would like? ma'am. या नीति पढ़ लेगी. नीति बोल रही थी पढ़ने के लिए. नीति या Neeti, would you नीति like पढ़ to लेगी. read? नीति, you can. Neeti, are you there in this? Yeah, Neeti is here in the session. Or anyone Yeah. else who would like to read? Anyone who would like to read today? Yes, I am. You told me to read CV. I can read health also if you say. Yeah, सुनैना आप सीवी पढ़ रहे हैं, बट अभी वो दिशांत आई थिंक कुछ हो गया होगा. दिशांत इज नॉट बीन एबल टू लॉग इन. Okay. If Okay, you ma'am. need me, Then anyone else? Yeah. नीति या कोई भी पढ़े. चाहे तुम पढ़ लो, सुनैना, कोई पढ़ ले. जैसे Yeah, मर्जी. even I can, whatever. Well, okay, let's अच्छा, read. नीति, you are there ना, तो नीति, you please read. So yeah, नीति, please read. Yeah, just give me a minute. Yeah. Yeah. Just a moment. आज हमारा डे है. हमारे को अपनी हेल्थ को बहुत मैजिकल बनाना है. वी विल रियलाइज दैट हम अपनी हेल्थ को कितना ग्रांटेड लेते हैं. और सबसे बड़ी बात है, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, और हर एक सेल सुनता है. हर एक सेल, जो हमारे थॉट्स आते हैं, जो हम बोलते हैं, वो जैसे हम जो भी रिस्पॉन्ड रिएक्ट करते हैं, सारे हमारा सेल अब्सॉर्ब करता है. हम जो जो बातें सुनते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, वो हमारा हर एक सेल अब्सॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है. तो सोचिए, आप जो सोचते हो, क्या आप सुनते हो, क्या आपके थॉट्स हैं. तभी तो हम ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और इतनी अच्छी बुक्स कर रहे हैं, ताकि हम लोग हमारे सेल्फ टॉक जो है, जो हम सोचते हैं, वो हम चेंज कर लें. हाँ जी. Yeah. हाँ जी. Please पढ़िए. Good morning. Yeah, magical health. The greatest wealth is health. By Virgil, 70 BC to 19 BC, Roman poet. Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us, without our health, we have nothing. There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not.
While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. And Niti, we'll just take a small pause. So what is health? हम कभी कभी सोचते हैं कि हेल्थ क्या होती है. ठीक है, मुझे ये डिजीज नहीं है या बीमारी नहीं है या इलनेस नहीं है, मैं हेल्दी हूँ. WHO ने भी लिखा हुआ है कि गुड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इलनेस. सो हम लोग कभी सोचते हैं कि ठीक है, एंड सी सबको, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि बीइंग हेल्दी क्या होता है. सी व्हेन यू हैव एनर्जी थ्रू आउट द डे, आपके पास एनर्जी, आप शाम को भी काम से आ रहे हो, उसके बाद भी ऐसे नहीं है कि आपके पास एनर्जी ना हो, आपके पास टाइम है, आप फैमिली के साथ बिता सकते हैं, वो होता है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट हेल्दी होता है जब हमारी मेंटल फिटनेस होती है, जब हम thanks to these wonderful books and Deepti ma'am who's taking the session every day, हमारी मेंटल हेल्थ इतनी इम्प्रूव हो गई है. बिकॉज इवन इफ वी आर हेल्दी फिजिकली, अगर हम डिप्रेसिव स्टेट में हैं, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, वी आर नॉट हैप्पी, देन वी आर नॉट हेल्दी, है ना. And like if we are not, and we are social animals, we need people, we need to have friends, we need to enjoy with our friends and our family. If we are only working and we are only like kind of just being in our own, not interacting, then that is also not healthy. So good health is actually सब कुछ को encompass करता है, and we should really really think a lot about our mental health. हम क्या सोचते हैं, हम खुश हैं कि नहीं, हम सारे दिन हमारा क्या मेंटल स्टेट होता है. इवन हमारी गुड हेल्थ का वो फीलिंग चार्ट है, जो आज के हम फिर से डाल देंगे, उससे भी मालूम पड़ जाता है. अगर हम हैप्पी हैं, जॉयस हैं, और वी आर एक्साइटेड अबाउट लाइफ, सो दैट मीन्स वी आर हेल्दी. जब हम नहीं होते हैं, व्हेन वी आर इन डाउट, व्हेन वी आर एंगर, दैट इज नॉट हेल्थ. सो द ग्रेटेस्ट हेल्थ इज वेल्थ. ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है और ये हम जानते भी हैं. अगर हमारे पास सब कुछ है, हम बेस्ट टू बेस्ट प्लेस में गए हुए हैं, बहुत सुंदर जगह में गए हैं, पर उस समय हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, तो कैन वी एंजॉय? वी कांट इवन एंजॉय द बेस्ट ऑफ फूड और द बेस्ट ऑफ प्लेस और द बेस्ट ऑफ फंक्शंस. कितने भी लोग आए हों, कितने भी नियर एंड डियर आए हैं, पर अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो हम कुछ भी इंजॉय नहीं करते. सो रियली मतलब वी, एंड सो मेनी टाइम्स वी ऑल हैव सीन, स्पेशली व्हेन वी आर यंग, हम अपनी हेल्थ को ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हमें सब पता होता है कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा है. अब मेरे घर में भी बच्चे हैं, मतलब बड़े बड़े बच्चे हैं, दे आर मैरिड. आई ऑलवेज सी दैट इट्स नाइस टू ईट आउट एट वीकेंड्स और समथिंग. एक हफ्ते में 5-6 बार ईटिंग आउट, not sleeping on time. हमें सबको पता है कि we should sleep on time, get up on time. We are not sleeping on time. We are not. So हम लोग को पता है कि हम कंप्यूटर्स के आगे काम करते हैं. So we need to take care of our eyes. We need to go for exercise. We need to be in nature. पर हमको सब पता है, पर हम करते नहीं हैं. हम अपना उठते हैं, पहले तो थोड़ा सा लेट उठेंगे क्योंकि रात को लेट सोते हैं, फिर नाश्ता भी हम कार में करते हैं या भागते भागते करते हैं, हाथ में प्लेट होती है, और हम चलते चलते भागते भागते करते हैं. सो अगर हमारा फर्स्ट फ्यूल, हमारा जब ब्रेकफास्ट हम ऐसे करते हैं, तो हम कैसे हम पूरा दिन, मतलब वी हैव टू सी वंस इन अ वाइल, चलो कभी होता है तो इट्स अनदर थिंग. बट आप सोचिए व्हेन किसी की लाइफ में ऐसे है कि वो जद्दोजहद में नाश्ता करता है, खाना खाते खाते भी दे watching their mails, or they're on the phone, they're replying to the emails. I have so many clients,
who are like so busy. They say, we don't even have time to eat in the office. Then what are we working for when we cannot take out time for our own health? हम खाना खाने के लिए मतलब 10 मिनट नहीं होते. वी हैव टू ईट न्यूट्रिशन. हम सबको पता है कि हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना है. हमारी प्लेट में घर का बना हुआ बैलेंस फूड चाहिए, सैलेड भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल या कर्ड चाहिए, और रोटी या चावल चाहिए. हम उसमें भी हम कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं. हम सबको पता है कि जो गुड हेल्थ, जो सबसे ज्यादा रिचनेस क्या है, गुड हेल्थ की है. हम ऑफ कोर्स मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट जब हमारे पास हेल्थ नहीं होती तो हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं होता. तो इसलिए बहुत जो हमारा कल रिलेशनशिप का चैप्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. बिकॉज अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं हमारी लाइफ में, तो हमको हेल्थ बहुत, हमारी हेल्थ में बहुत बेटर होती है, हमारी हेल्थ अच्छी हेल्थ होती है. क्योंकि स्ट्रेस इससे बहुत ज्यादा चीजें हमारी सफर करती हैं. सो हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली. सबसे आई थिंक हेल्थ, योर बॉडी, योर हेल्थ इज एक्चुअली अ गिफ्ट ऑफ लाइफ. और ये हम सबको पता है, तो हमको इसको और अच्छा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, वी हैव टू बी मोर ग्रेटफुल. जितने हम ग्रेटफुल होंगे हम उतने यूथफुल होंगे. सो गुड हेल्थ का ये भी बहुत बड़ा एक बैरोमीटर है कि आप कैसे दिखते हो, आप में कितनी एनर्जी है, कितनी वाइटैलिटी है. आर यू चाइल्ड लाइक, डू यू हैव एनर्जी लाइक दैट? Even if it doesn't matter how old you are, even a bacha, I mean a boy or a girl of 25 years will not have energy, or the vitality to live life, or the excitement to live life. So इसमें of course this is a favorite quote जिसमें लिखा है कि whoever has gratitude for health will be given more. हमेशा जब हम बहुत ग्रेटफुल होते हैं हेल्थ के लिए, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम के लिए, हमारा जैसे हम जब पानी पीते हैं, जब हम शावर लेते हैं, our body is made of, our brain is more than 80% water, body is more than 70% water. So and water listens and food absorbs. तो हम जब भी खाना खाते हैं, जब भी पीते हैं पानी, जब हम ग्रेटफुल होते हैं, हमारी हेल्थ बढ़ती है. ये तो मैंने भी देखा है अपनी लाइफ में. जब हम नहाते हैं, बिकॉज जब हम नहाते हैं तो हम पानी के नीचे होते हैं, हम 5 एलिमेंट्स में होते हैं. सो उस समय हम अपना, जब भी हम जो पार्ट में हमारे सोप लग रहा है या जहां जहां हमारा पानी टच कर रहा है, अगर हम उस पार्ट के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप ऊपर से लेकर नीचे तक शुरू हो जाएंगे ना, कि आईज के लिए, फेस के लिए, ऐसे ऐसे कर फिर अपने मसल्स के लिए, टिश्यूज के लिए, आपके हर एक ऑर्गन के लिए, इवन नहाते हुए भी होंगे. दैट्स सच अ वंडरफुल थिंग टू डू. और आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ, आपकी कितनी भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, वो सब ठीक हो जाती है. हाँ जी, नीति पढ़िए प्लीज. Yeah, thank you. You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic, by John Henry Jowett from 1864 to 1923. Presbyterian. Sorry, Yeah. we'll just take a moment. Yeah. So even if people who are जिनकी healthy lifestyle होते हैं, वो भी मतलब if they have to be grateful for health. तो हमने देखा है कि हमारी health कभी कभी कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कुछ कुछ होता रहता है. So मैंने जब से gratitude की जर्नी में आई हूँ,
I have seen my health so improve drastically. आपको भी aches and pains होते हैं, कुछ कुछ कभी कभी हो जाते हैं. I तो just like really कहते हैं ना, energy flows where attention grows. तो मैं बहुत gratitude करती हूँ उस part के लिए, बहुत मतलब I'm really happy for each and every cell in my body. और मैंने पहले मैं देखती थी, जब मैं पहले फेस को देखती थी ना, मुझे लगता था कि मेरे फेस में ना बहुत मोल्स हैं, ये है. बट अब जब मैं पढ़ रही थी, जब ये लाइन आई ना कि लिटिल एक्स एंड पेन्स, मोल्स, स्कार्स एंड मार्क्स विल स्टार्ट टू मैजिकली डिसअपीयर, आई रियलाइज दैट एक्चुअली मैंने नोटिस ही नहीं करा है कि मेरे फेस में पहले मोल्स हैं. आई टू बी वेरी क्रिटिकल कि ओ मेरा ये बढ़ रहा है, ये ऐसा हो रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, whenever now I see my face, I always feel कि oh बहुत ही. Then I also say my affirmations, thank you for making me look so young, thank you for giving me such perfect health. So I think everything उसमें आ जाता है. When I'm so grateful for everything, for my each and every body part. So जब हम अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होते ना, पहले हमें समझ ही नहीं आती थी कि आईज के लिए भी ग्रेटफुल होना है, हेयरिंग के लिए भी ग्रेटफुल होना है. नाउ व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड द फर्स्ट थिंग आई डू इज ओपन द कर्टन्स एंड ओपन द डोर, द विंडो ऑफ माय रूम, तो सबसे पहले बर्ड्स की आवाज आती है. आई एम सो ग्रेटफुल टू हियर दैट. सो अपने आप ही वो हेयरिंग का आ जाता है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू सी नेचर्स बाउंटी फ्रॉम माय रूम. सो अपने आप you are in that sphere. Thanks to all these practice, we are learning and we appreciate each and everything in our life. And we all, ये तो कोट ना सब लोग प्लीज ऐसे कहते हैं ना, याद कर लो कि gratitude is the vaccine and antitoxin and antiseptic. So हमारी बॉडी एक फार्मेसी है, सब कुछ healing, everything is happening inside the body. The problem is we seek healing outside, है ना. जब हम अपना सपोज करो कभी कभी और ये मैंने देखा है, जब सपोज करो किसी को फ्लू होता था, किसी को कोल्ड होता था, मैं ना बस कोसों दूर भाग जाती थी वहां से, मैं उस रूम में नहीं जाती थी. बट नाउ इवन इफ द पर्सन नेक्स्ट टू मी इज हैविंग कोल्ड, आई ऑलवेज से थैंक यू फॉर माई सच अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, थैंक यू, माई बॉडी हील सो फास्ट. मैं ऐसे से बार बार बोलती रहती हूँ कि थैंक यू फॉर माई अमेजिंग इम्यून सिस्टम, रियली थैंक यू, आई ऑलवेज हैव परफेक्ट हेल्थ. तो मैंने देखा है एक्चुअली आई एम ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, आई एम ऑलवेज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो ग्रैटिट्यूड एक्चुअली वैक्सीन है. जब हम वैक्सीन लगाते हैं ना कि ये शॉट का उसका हम ठीक हो जाए, एंटीटॉक्सिन है एंड एंटीसेप्टिक है. व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, फॉर योर हेल्थ, आपका वो बॉडी पार्ट है ना जो वो ऑटोमेटिकली हील करने लग जाता है. जैसे मैं सपोज कट पड़ता है छोटा सा है ना, तो वो अपने आप हील करता है ना. हमको ऐसे तो नहीं इसमें स्टिचेस लगाने पड़ते हैं कुछ, वो बॉडी हमें अपने आप हील करती है. वैसे ही जब हमारे छोटे छोटे कुछ एक्स होता है, अभी मैं कहाँ गई थी, आई हैड गॉन टू, अब मैं गोवा गई थी. सो जिस दिन मैं गोवा पहुंची हूँ ना, एयरपोर्ट से मैंने देखा कि मेरी रिस्ट में दर्द हो गया, राइट रिस्ट में. मे बी एम नॉट, जो भी कुछ हुआ होगा लगेज से किसी चीज से भी, और वो दर्द रहा दिन में. तो मैं बस बार बार बोलती रही थैंक यू फॉर माई परफेक्ट माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ करती रही. रात को भी अपने हाथ को बहुत मैंने, जैसे हाथ को ऐसे करते ना, आई टच माई हैंड एंड आई थैंक यू सो मच. सारे पार्ट सारा याद करा कि मैं क्या क्या करती हूँ अपने हैंड से. एक्चुअली सुबह जब मैं उठी हूँ और वो दर्द ना अच्छा वैसा था, मतलब इट वॉज नॉट अ लेस दर्द नहीं था, कम नहीं था. सुबह उठकर एक्चुअली नॉर्मल हो गया. सो when we believe in the healing inside, एक्चुअली इतने क्लाइंट्स हैं, इतने लोग हैं. मतलब मेरा एक क्लाइंट है, उसको किडनीज करनी थी, अपने नेव्यू को देनी थी. एंड यू वोंट बिलीव मी, उसका HbA1c इतना ज्यादा था कि ही कुड नॉट 1 month में, एंड ही अप्रोच्ड मी फॉर हिज डाइट. 1 month में ही could lessen his HbA1c, which we all know in this field that हमें 3 months लगते हैं एटलीस्ट कि अपना HbA1c डायबिटीज लेवल नीचे लाने के लिए. बट miracles happen when we are in the sphere of gratitude, when we believe in the healing inside. हाँ जी, नीति पढ़िए. Yeah. This was by Presbyterian preacher and writer. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you're not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means
your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. Yes, Neeti, 1 minute, we'll just take a break. Thank you so much. So, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है एक्चुअली आपकी हेल्थ का. आप कितने ग्रेटफुल होते हैं, आप कितना बिलीव करते हैं अपनी अंदर की हीलिंग का, उस पे सारा डिपेंड करता है. सो एंड कभी भी ना आपकी कोई भी स्फेयर ऑफ हेल्थ, मतलब कोई भी आपकी एनर्जी कम है, आप शाम तक बहुत टायर्ड हो जाते हो, बहुत क्रैंकी हो जाते हो, आप प्लीज देखिए कि आपको अपनी हेल्थ में कहाँ क्या इम्प्रूव करना है. जब हमने इकिगाई बुक पढ़ी थी, हमने देखा था कि ऑल द पीपल आर लिविंग मोर देन 100, मतलब 100 से ज्यादा ही सब लोग की लाइफ थी. और कैसे करते थे वो लोग, वो कितना नेचर में टाइम स्पेंड करते थे, वो अपना कैसे मूवमेंट वाली एक्सरसाइज करते थे, वो कैसे अपने कम्युनिटी लिविंग कितनी स्ट्रांग रखते थे, वो कितना पानी पीते थे, और वो किस टाइप का खाना खाते थे. वो अपनी भूख से 80% कम 20% कम खाते थे खाना, 80% खाना खाते थे, अपनी मूवमेंट रखते थे वो हर एक घंटे. और कैसे जब वो खाना भी खाते थे, उनका लार्जली वो मतलब उनका खाना में लार्जली वेजिटेबल्स होता था. सो व्हेन वी सी ऑल दीज थिंग्स, जब हम अच्छा लाइफस्टाइल लेते हैं, जब हमें पता सब कुछ होता है. ऐसा नहीं यहाँ पर सब जन बैठे हैं कि उनको पता नहीं है कि अच्छे लाइफस्टाइल में हमको क्या करना चाहिए. बट द थिंग इज कि वी डोंट टेक एक्शन फॉर आवर हेल्थ. हमारा टाइम चलता रहता है, हम सोचते हैं ठीक है, एंड दैट इज अब्यूजिंग योर बॉडी. सो रियली टेक केयर, बिकॉज इफ योर हेल्थ इज राइट, यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग. और स्ट्रेस जो है, अपनी जो मेंटल हेल्थ है, वो मतलब आप सोचे, कई लोग कहते हैं ना कि मेरे बाल झड़ रहे हैं. सो स्टडीज हैव शोन कि हम इतना स्ट्रेस में, टेंशन में रहते हैं कि हमारे जो स्कैल्प है ना, वो इतना टाइट हो जाता है. वो एक्चुअली उसके जो फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल्स, जहाँ से हेयर निकलता है, हम उसको इतना टाइट हो जाता है कि वो ब्रीथ नहीं करते हैं. फिर ना तो वो नए हेयर आते हैं, और जो हेयर होते हैं वो भी फॉल कर जाते हैं. एंड स्ट्रेस से हमने देखा है कि हमारे सारे अंदर की जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है. तो स्ट्रेस होता है अननेसेसरी ओवर थिंकिंग. छोटा छोटा तो ठीक है, हम सब स्ट्रेस में होते, दैट इज फाइन. बट ऑलवेज बीइंग इन स्ट्रेस, ऑलवेज बीइंग सो लाइक नॉट एबल टू एंजॉय एवरीथिंग इन लाइफ. Every moment is there to be happy, to enjoy, do your work, but also enjoy your life. Don't live a life like a machine कि बस काम करा खाया सो गए, काम करा खाया सो गए. कोई हंसी नहीं. Smile so much, even if you are so much of work to do, we all can smile, we all can laugh. Take out time to laugh every day. That is so important. Take out time to listen to music every day. It is so important for our gut health. जब हम म्यूजिक सुनते हैं, जब हम चीज करते हैं, एटलीस्ट वीकडेज में टाइम नहीं मिलता, पर वीकेंड्स में कुछ करिए जो आपको हेल्प करता है. लाइक जैसे श्याम जी गाना गाते हैं, इट इज सो नाइस फॉर, जब हम सुनते भी हैं तो हमारा कितनी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है ना बॉडी की. सो डू दोज थिंग्स, मूव मोर. आप थोड़ी देरी फास्ट वॉक करिए या जंप करिए, आपको देखिए कि आपके एनर्जी लेवल्स कितने बढ़ जाते हैं. सो दीज ऑल टेक अस, और हमारी हेल्थ इतनी बेटर हो जाती है. सो जब स्ट्रेस होता है, एवरीवन हैज स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं. डीप ब्रीथ करा करिए, जैसे दीप्ति मैम कहती हैं, मेडिटेशन करा करिए. डू थिंग्स टू मेक योर हेल्थ बेटर. मेडिटेशन का टाइम नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट 5 डीप ब्रीथ करनी है, वो करा करिए दिन में 3, 4, 5 बार, जितनी बार भी. सो जब तक आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी में रेस्ट एंड रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन नहीं होता है. ऑलवेज अंडरस्टैंड, जब आपको, अगर सम पीपल हु आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, डीप ब्रीथ कर खाना खाइए, बिकॉज द डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस if your mind is racing and if you're in constant anger or stress.
हाँ जी Yeah. नीति, पढ़िए। Yeah. Yeah. You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. या 1 मिनट नीति। सो हमको देखना है कि आज हम कितने हेल्दी, हमारी वाइटलिटी है कि नहीं है, हम एनर्जी है कि नहीं है। सो अगर नहीं है तो बस हमें तो क्या करना है, ग्रैटिट्यूड ही तो करना है। हमें तो बोलना है ना कि थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई अनलिमिटेड एनर्जी। सो मेरा एक काउंट माई ब्लेसिंग जरूर हेल्थ के लिए होता है। मैं इधर अपने सेल्स के लिए लिखती हूँ, और या मैं जरूर लिखती हूँ कि थैंक यू फॉर माई सच एन अमेजिंग परफेक्ट इम्यून सिस्टम विच हील्स माई बॉडी सो फास्ट and which gives me unlimited energy throughout the day. So अगर नहीं है हमारे पास कोई भी, हमारा एरिया वीक है हेल्थ का, तो बस ग्रैटिट्यूड ही तो डालना है। सो इजी, हमारे पास तो वे भी है। और अभी नीति पढ़ेंगी, एंड प्लीज आप लोग सब लोग मतलब बहुत आराम से उसको अब्सॉर्ब करिए वो क्या क्या पढ़ रही हैं, बिकॉज इन अ वे हम उसको जब नीति पढ़ेंगी तो हम उसको बेसिकली हम विजुलाइज करेंगे वो अपना, एंड देन वी साथ साथ में विल कीप ऑन पेइंग ग्रैटिट्यूड टू दैट पार्ट ऑफ बॉडी। हाँ जी नीति, प्लीज पढ़िए। Yeah, yeah. Think about your legs and feet. They are your main form of transportation in your life. Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen to get a drink, and walk to your car. Your legs and feet allows you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say, thank you for my legs and feet, and really mean it. Think about your arms and hands and how many things you picked up and hold in one day. Your hands are the major tools of your life, and they are in non-stop use all day long, every day. Your hands allow you to write, eat a meal, use a phone or computer, shower, get dressed, use the bathroom, pick up things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things for you. Say thank you for my arms and legs, arms, hands, and fingers. Think about your amazing senses. Your sense of taste gives you so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drinks. Say, thank you for my amazing sense of taste. Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrances of life. Flowers, perfumes, clean sheets,
dinner as it's cooking, a fire burning on a winter's night, the air on a summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after rain. Say, thank you for my wonderful sense of smell. If you didn't have a sense of touch, you would never know hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with a reassuring hug and to feel the touch of a hand from one human being to another is one of the most precious things in life. Say thank you for my precious sense of touch. Think about the miracle of your eyes, which enable you to see the faces of your loved ones and friends. Read printed books, newspapers, and emails. Watch television. See the beauty of nature. And most importantly, see your way through life. Just put a blindfold on for an hour and try to do what you normally do, and you will appreciate your eyes. Say thank you for my eyes and enable me to see everything. Think about your ears, which enable you to hear your own voice and other people's voices so you can talk to people. Without ears and your sense of hearing, you could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved one talk, or hear any of the sounds of the world around you. Say thank you for my hearing. And to use any of your senses would be impossible without your brain, which processes over 1 million messages a second through all of your senses. It is actually your brain that enables you to sense and experience life. And there is no computer technology in the world that can duplicate it. Say thank you for my brain and my beautiful mind. Think about the trillions of cells working unceasingly 24/7 for your health, body, and life. Say thank you, cells. Think about your life sustaining organs, which are continuously filtering, cleaning, and renewing everything in your body. And think about the fact that they do all their work automatically without you even having to think about it. So, thank you, organs, for working perfectly. But more miraculous than any sense, system, function, or other organ in our body is the organ of your heart. Your heart governs the life of every other organ because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body. Say thank you for my strong and healthy heart. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big, bold letters. The gift of health is keeping me alive. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you're a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home, most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you've written often. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life.
If gratitude were used in conjunction and conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we've never seen before. Magic practice number 4, magical health. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, on a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Number 3, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Number 4, on at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you. Thank you, Neeti, for reading so well. While you were reading, it was, I think you're the perfect person to read this. इतने आराम से पढ़ रहे थे, and I think didn't need any explanation because you were reading so well, and I was really, आप जो पढ़ रहे थे, मैं actually उस part पे जाकर, I was saying thank you. So, thank you so much, Neeti. Many thanks, ma'am, for your kind words. Thank you. So, हमको आज, और actually आज संडे है, मैं भी यही सोच रही थी कि आज हमको सारा दिन ना हम कुछ जो भी करेंगे, हम खाना खाएंगे अपने थंब का, अपनी फिंगर्स का, अपने हैंड का, अपने टेस्ट का, अपने सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का, उसका थैंक यू करेंगे। हम चलेंगे तो अपने लेग्स का, अपने सारे मसल्स का, कि हमारे सारे मसल्स बहुत फर्म हुए। आज बहुत एफर्मेशंस करेंगे हम अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ की, मतलब थैंक यू फॉर द अनलिमिटेड एनर्जी, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन वर्किंग सो वेल, थैंक यू दैट माय सेल्स आर डांसिंग, थैंक यू माय सेल्स आर सो हैप्पी। जब आप बार बार बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया था कि योर थॉट, योर वर्ड्स आपकी सेल्स अब्सॉर्ब करते हैं। जब बोलते कि ऑल माय सेल्स आर हैप्पी एंड डांसिंग, तो आपके सारे सेल्स हैप्पी होंगे ना। ऑफ कोर्स जब वो हैप्पी होंगे तो हमको कितनी बेटर हेल्थ देंगे। तो हर एक ऑर्गन के लिए हमारा दिल सारा समय धड़क, मतलब इट बीट्स, हमें पता भी नहीं चलता है, डाइजेशन होती है हमको पता नहीं चलता है। सो रियली, और आज हमारे पास टाइम है, मतलब आज हमारे पास बैंडविड्थ है कि हम अपना थोड़ा टाइम लगा लें अपने ऊपर। सो आज का हमारा हेल्थ का बहुत अच्छे दिन पड़ा है। आज अभी सेशन के बाद ही कर लीजिएगा, क्योंकि आज आपको कोई किसी को जल्दी नहीं है। एक पेपर लीजिएगा, एक पीस ऑफ पेपर, और उसमें लिखेगा, ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, है ना। और ये लिख करना है, और आज उस जगह पे रखना है जहां पर आप इसको बहुत बार देख सको। और पर मैं तो हमेशा पढ़ती नहीं हूँ सिर्फ, मैं तो अपने हाथ में लेती हूँ, और उसके बाद क्योंकि मेरे सारे अपने हैंड्स में, अपने फिंगर एंड्स में सारे पूरी बॉडी की नर्व एंडिंग्स होती हैं, मैं उसको हाथ में लेती हूँ, और फिर बहुत ग्रैटिट्यूड में पढ़ती हूँ कि मेरी हेल्थ, मतलब पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। सो जब आप आज चलेंगे तो अपने ग्रैटिट्यूड देंगे अपनी लेग्स का, जब आप कुछ खाएंगे, कब कुछ भी करेंगे, आप हंसेंगे तो भी, बाल बनाएंगे तो अपने हेयर का ग्रैटिट्यूड देंगे। बहुत आप जितना ग्रेटफुल होते हैं अपने हेयर के लिए, आप, बिकॉज मेजरली हम सब कहते हैं ओ दिस एंड दैट, जितना आप ग्रेटफुल होते हैं अपने हेयर के लिए, जितना बोलते हैं कि आई हैव गॉट सच स्ट्रॉन्ग हेयर, जितना आप अपने आप को रिलैक्स करते हो, जितना डीप ब्रीदिंग करते हो, आपकी हेल्थ, आपका हेयर उतना बेटर होता रहेगा। सो यू हैव टू कीप ऑन लुकिंग यंगर डे बाय डे, दैट इज द राज ऑफ गुड हेल्थ, दैट इज द बैरोमीटर ऑफ गुड हेल्थ। सो आज हमको पहले लिखना है, हमको द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। फिर दिन में ये तो हमने लिख लिया और हमने पढ़ लिया, उसके बाद 4 और बार हम उसको पढ़ेंगे आराम से, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, और बहुत ग्रेटफुल होंगे अपनी हेल्थ के लिए। सो ये नंबर्स का भी देखिए, रॉन्डा बर्न इज सो पर्टिकुलर, एक बार हमने लिखा और 4 बार और, दैट मीन्स 5, एंड हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं।
सो कितना सिंबॉलिक होता है नंबर्स, एंड 5 इज सच अ प्रेशियस नंबर, मतलब कि हमारा कितनी चीजें, बिकॉज हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सो एलिमेंट्स क्या है, भगवान है, यूनिवर्स है। सो अब हम आज दिन भर विल बी इन दिस जोन। सो रियली हेल्थ के लिए करिए, आप अपनी हेल्थ के लिए करिए, इवन दिस ऑल रिपल इफेक्ट आप अपने लिए करते हैं, फिर हमारी फैमिली का, हमारा अपना खाना इंप्रूव होता है, पूरी फैमिली का होता है, एंड ऐसे ऐसे कर कर हम इसको रिपल इफेक्ट कर कर हम पूरी नेशन को हेल्दी बना सकते हैं। सो आज की हमारी प्रैक्टिस है कि हमको काउंट माई ब्लेसिंग, हम लोगों ने जिसने लिख ली है बहुत अच्छा है, नहीं लिखी है सबसे पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखिए, 10 लिखिए, फिर फर्स्ट पढ़िए, फिर उसको एक फर्स्ट पढ़ने के बाद बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर सेकंड पढ़िए, फिर बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ताकि हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अब्सॉर्ब कर ले। फिर एक पेपर लीजिए और उसमें लिखिए द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। वो लिखिए और फिर उसको आराम से पढ़िए, फिर दिन में 4 बार और पढ़िए। फिर रात को हमको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, जो हमने परसों करा था, कि हाथ में रॉक लेना है और बहुत ग्रेटफुल, और दिन भर स्कैन करना है कि दिन भर में क्या हुआ, और फिर एक चीज के लिए हमें बहुत ग्रेटफुल होना है। हमारे हमारे में तो सारे दिन जब मैं स्कैन करती हूँ रात को, मैं हमेशा कहती हूँ थैंक यू, आई एट दैट, थैंक यू। फिर मैं एंड में सोचती हूँ सबसे ज्यादा और किसके लिए ग्रेटफुल हूँ, फिर मैं पूछती हूँ यूनिवर्स से आज और मतलब किसके लिए ग्रेटफुल हूँ, फिर एक चीज चूज करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, and we shall now start with the second book, Creative Visualization. Over to you, Priya. I'll stop sharing the screen. Yeah, good morning, everyone. So we'll be reading the second book now. Deepti ma'am is here. Ma'am, would you like to add something on this, the health chapter, or should we continue with the creative visualization now? Deepti ma'am has logged in actually. I was just wondering whether she would like to. I've just touched base in India. I've just landed, so Okay. I'm still in flight, not out of Fine, the fine. You are aircraft. just So you listening, carry on, ma'am, I'm है ना? listening. I will not be able to talk. Abhi immigration Okay, mein okay. I have to do. I'll share the screen. So is the screen visible to all? No, ma'am, is it? Yeah. Yes, yes. Yes, yes. Yeah. Yes, Priya. Yeah. So Sunaina will be reading today. Before that, we all have studied about the affirmations that Shakti Gavin has given to us. इतने अच्छे से इन्होंने इतने सारे affirmations दिए जिनको हमने कल पढ़ा, परसों पढ़ा. Kal she taught us how to write those affirmations, how to customize your affirmation. It's not necessary to रट्टोफाई नहीं करना है हमने कि एक दिया तो उसी को, we can create our affirmations, right? So she has given us the way that how can we create the affirmations. What she wants to say कि she wants to teach about the spiritual paradox. Actually क्या है ना कि हमारे पूरे वर्ल्ड में ना 2 तरह की मेंटालिटीज होती हैं. एक हमारी वेस्टर्न मेंटालिटी होती है और दूसरी हमारी यहाँ की ईस्टर्न मेंटालिटी, यानी कि ईस्टर्न फिलॉसफी. सो इन वेस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न फिलॉसफी के बीच में ना काफी सारे डिफरेंसेस हुई हैं, बट उनका उद्देश्य जो है ना, उनका जो मेन गोल जो है ना, वो सेम है, राइट? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे हम ईस्टर्न जो फिलॉसफी है दैट इज मोर अबाउट द स्पिरिचुअलिटी थिंग, कि हम लोग कुछ चीज को सोच के एक्सपीरियंसेस के साथ हम लोग उसको करते हैं, ठीक है. लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर ना मतलब थोड़ा सा लिटरेसी कम है, इस कारण से क्या है ना कि हम लोग उस चीज को अगर स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से समझाएं अपने लोगों को तो उनको ज्यादा समझ में आता है. ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए. मतलब हम लोगों को क्या होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी हम लोग एक तरह से डिसिप्लिन सिखाता है सिर्फ स्पिरिचुअलिटी हमें, बट वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो फैक्ट्स में ज्यादा बिलीव करते हैं कि फैक्ट्स हो, साइंटिफिक रीजंस हो, लॉजिक हो. बट शक्ति गवेन कहती हैं कि हम लोगों को जो दोनों के दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं, दे बिलीव इन द इनेट पावर ऑफ योरसेल्फ. वो आपकी अंदर की जो पावर है ना उस पर बिलीव करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले के जमाने में हमारे इंडिया में काफी, इंडिया में और बाहर भी, हम लोगों को तो इंडिया के बारे में ज्यादा पता है क्योंकि उस टाइम जो ऑब्वियसली नेट वगैरह तो होते नहीं थे. तो आपको पता है ना कि जैसे स्मॉल पॉक्स यूज्ड टू बी सच अ ड्रेडफुल थिंग दैट टाइम. अभी तो वो नहीं है इस वर्ल्ड में, अभी तो हम लोग इरेडिकेट कर चुके हैं सक्सेसफुली स्मॉल पॉक्स को. लेकिन उस टाइम क्या था
कि हम लोग उसको ना माता का नाम दे देते थे कि माता आएगी, माता आ गई, माता आ गई। बट वो क्या था, वो ये था ना कि वो हम लोग उस चीज को डराने के लिए, सो दैट हम लोग जो है ना, जिसको भी अफेक्टेड बंदा हो वो रिस्ट्रिक्टेड रहे, है ना, क्योंकि इट वाज वेरी वेरी कम्युनिकेबल। जिस तरह से अभी कोविड के टाइम पे हुआ, कोविड के टाइम पे भी ना बहुत सारे लोगों ने उसको नाम देने की कोशिश करी थी, ये माता वो माता टाइप। बट वो किस लिए है, ताकि हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, ऐसे इंसान से मिलें, जब हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहे, आइसोलेशन को हम लोग समझें कि क्या आइसोलेशन है। तो सबको पता है कि इट इज हार्ड टू टीच। कोई अगर कैलामिटी आती है, कोई भी पैंडेमिक आता है, उस टाइम लोगों को जिस तरह से अगर समझाना, एडुकेट करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं, तो वो मुश्किल हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, हम लोग अगर स्पिरिचुअलिटी से उसको कनेक्ट कर देते हैं ना, तो वो इजी हो जाता है। गोल तो दोनों का सेम है ना, गोल ये है कि अपने आप को सेफ रखना है ना। तो हमारी जो ईस्टर्न फिलोसफी है, वो ये बोलती थी कि नहीं, मतलब हम लोगों ने ये वाली चीज है, माता आ जाएगी तो हमने रिस्ट्रिक्ट करना, माता नाराज हो जाएगी। माता कैसे नाराज हो जाएगी, हम किसी इंसान से मिले, उस इंसान से हमें हमें इन्फेक्शन लग गया, लेकिन हमको क्या लगता है कि माता का प्रकोप हो गया। तो इट्स लाइक इस तरह से उन लोगों ने, हम लोग अगर दोनों की दोनों मेंटालिटीज को चेक करें ना, तो गोल दोनों का सेम ही है ना। लेकिन हम लोग, दैट इज द पाथ इज डिफरेंट, जस्ट द वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट, गोल इज अल्टीमेटली द सेम। उस दिन हमारे लाइक किसी ने भी शेयर किया था ना कि बर्तनों को रात को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो बर्तनों को रात को जूठा इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि वहां पर कॉकरोचेस हो सकते हैं, है ना, वो किचन के एरिया में कॉकरोच आ जाएंगे, या चूहे हो सकते हैं, इस तरह की चीज, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने उसको किस तरह से बोला कि वो कुछ करने जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं टाइप, इस तरह से। वो क्या है, वो रीजन तो उनका सेम है ना, जो क्लीनलीनेस है, किचन की जो सफाई है, वो मेंटेन करने के लिए था, वो इसलिए नहीं था कि वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी इज द थिंग, इज अ मोड टू टीच मासेस, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को ये वाला जो पैराडॉक्स है, ये वाला जो एक कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि स्पिरिचुअलिटी में कंफ्यूजन है कि दोनों की दोनों थॉट प्रोसेस कैसे हैं, जो ईस्टर्न थॉट प्रोसेस कैसा है, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस कैसा है, उसके बारे में, उसका एक हम लोगों ने एक समन्वय करके ही हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज का, लाइफ का फंडा वही है कि व्हाट इज द थिंग, वी हैव टू लुक इनटू आवरसेल्फ एंड वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। दोनों फिलोसफीज हमें यही सिखाती हैं, है ना, कि हमने किस तरह से दोनों के साथ एक साथ एब्जॉर्ब करके एक पर्टिकुलर रास्ता अपनाना है, जो कि बीच का रास्ता होता है, राइट। सो या, लेट्स गो विद द चैप्टर नाउ. Sunaina will be reading for us. Sunaina. Yeah, am I audible, Priya? Yes, absolutely. Okay. Yeah, hi. Good morning, everyone. A spiritual paradox. Sometimes people who have studied Eastern philosophy or are on a certain consciousness growth path feel a hesitation about using creative visualization when they first hear of it. Their conflict comes from the apparent paradox they see between the idea of being here now, letting go of attachments and desires, and the idea of setting goals and creating what you want in life. I say apparent paradox because in actuality there is no contradiction between the two teachings when they are understood on a deeper level. They are both important principles that must be understood and lived in order for you to become a conscious person. In order to explain how they fit together, allow me to share with you my viewpoint about the process of inner growth. Most people in our culture have become cut off from their awareness of their spiritual essence. We have temporarily lost our conscious connection with our higher selves and thus have lost our own sense of power and responsibility for our lives. In some inner way, we have a sense of helplessness. We feel basically powerless to make real change in our lives or in the world. Just a moment, Sunaina. Yeah. So here what Shakti Govin wants to say कि हम लोगों को क्या है, हम लोग अपने लॉजिकल माइंड के थ्रू हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं, एंड दैट टाइम दिस कंफ्लिक्ट कम्स इन आवर माइंड कि वेदर टू बिलीव इन द विजुअलाइजेशन और नॉट,
राइट. शी वॉन्ट्स टू मेक अस क्लियर, शी वॉन्ट टू लाइक हमारे माइंड को इस तरह से क्लियर करना चाहती हैं कि ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है ना, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, एंड दैट इज वेरी मच साइंटिफिक. वो स्पिरिचुअलिटी और साइंस को साथ लेकर चल रही है ना. क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोगों को ना कई बार, जैसे हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे होंगे, हमारे मन में ना शंका हो जाती है, द फेथ डजंट डेवलप. जैसे हमने इससे पहले पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी तो यही बोला ना कि हमें अपने इनर पावर पे हमने बिलीव करना है ना. हमने भगवान को जो है बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढना है. सो दैट्स व्हाट शी सेइंग कि हमने क्या करना है ना, कि ये जो सारे की सारी टीचिंग्स हैं, इन सब का मिला जुला कर हमने, यही तो हमें पता चला है ना कि जो भी जो पावर है वो कहीं और नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है. अगर हमें जो भी फीलिंग किसी और के लिए आ रही है, वो खाली हम उस बंदे के बारे में जो सोच रहे हैं उसके कारण वो फीलिंग हमें आ रही है ना. और हम लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट में ड्वेल करते हैं. लेकिन दोनों की दोनों टीचिंग्स जो है ना, जो हमारी जो वेस्टर्न टीचिंग्स हैं और जो हमारे ईस्टर्न जो थिंकर्स हैं, वो दोनों के दोनों थिंकर्स यही बोलते थे कि वी हैव टू ट्राई एंड बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट. प्रेजेंट इज इम्पोर्टेंट. हम लोगों को अपने पास्ट से डिटैच होना है, सो दैट वी स्टे इन आवर प्रेजेंट. राइट. क्योंकि प्रेजेंट जो है ना, वो एक्चुअली प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट इज अ गिफ्ट ना, गिफ्ट एंड गिफ्ट इज सिनोनिमस टू प्रेजेंट. तो वो ही है. हम लोगों को अपने पुराने टाइम पे जो हम लोग सोचते हैं ना, कि अब जस्ट सपोज कि हमारी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई रिलेशन है, वो हमारा साथ छोड़ के चला गया है, बट वी ड्वेल इन दैट. हम लोग उसके कारण ही वही सोच सोच के क्या करेंगे, अपना प्रेजेंट खराब कर देंगे. हम लोग काम नहीं करते हैं उसके कारण, प्रेजेंट पे काम नहीं करते, प्रेजेंट में नहीं रहते. वी ड्वेल इन आवर पास्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर फ्यूचर ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड, यू नो. कहते हैं ना कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो आपके फ्यूचर को भी फिर इनगल्फ कर लेता है. जो आपके पास्ट की जो थिंकिंग्स हैं, या जो आपके पास्ट के जो ऐसे पेनफुल थॉट्स हैं, या कोई ऐसा पेनफुल इंसिडेंस है जिसको लाइक यू आर नॉट एबल टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट, सो वो हमारे फ्यूचर को भी इनगल्फ कर लेता है धीरे धीरे. सो वो कहते हैं, कहती हैं शक्ति कबीर, कि हम लोगों को अपने पास्ट से पीछा छुड़ाकर, उनसे डिटैच करके अपने आप को, तभी हम लोग उस चीज को समझ पाएंगे कि हम लोगों के पास कितनी ज्यादा पावर है, कि हम अपने फ्यूचर को अपने हाथों से क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप क्रिएट कर सकते हैं. विजुअलाइजेशन की पावर को हम लोगों को समझना बहुत इजी हो जाएगा. और जब हम किसी चीज पर फेथ कर लेते हैं ना, जब वो फेथ डेवलप हो जाता है, तब इट इज वेरी इजी टू फेल इन टू दैट प्लेस, है ना. हम लोग अपने आप सारी की सारी चीजों को हम लोग अपने आप उसको इमेजिन कर पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू क्रिएट द लाइफ दैट वी वांट. हमारे में से बहुत सारे लोगों को जो विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत बोलते थे कि हम तो ना, लिखा जाता है, विजुअलाइज नहीं हो पाता. मुझे भी ऐसा ही होता था. लेकिन जब मैंने ना इन सब चीजों को समझने की कोशिश करी, तो एक्चुअली ये बहुत मुश्किल नहीं है, एक्चुअली आसान है. हम कुछ भी चीजें तो इमेजिन करके ही करते हैं ना. जैसे अभी मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे. आप में से कोई तो खाना बनाते बनाते सुन रहा होगा, कोई मतलब बिजी शेड्यूल है, लेकिन स्टिल यू आर ऑल लिसनिंग टू मी. और अगर मैं अपने आप माइंड को पिक्चराइज करने की कोशिश करूं कि किस तरह से क्या होगा, मैं जो मेरी जो क्लोज फ्रेंड्स है, मैं उनका समझ सकूंगी कि हाँ, वो ऐसे कर रहे होंगे, वो कैसे कर रहे होंगे. तो जो हमें कैमरे के बिहाइंड है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनका भी तो हम विजुअलाइज कर लेते हैं ना, कि दिस वुड बी हैपनिंग टू, लाइक अभी ये हो रहा होगा वहां पर. सो ये कहती हैं कि हमारे जो वो स्पिरिचुअल जो दोनों के दोनों पढ़ाई में, दोनों के जो प्रिंसिपल्स में जो डिफरेंस है ना, उसका कॉमन गोल तो यही है कि एवरीथिंग इज विद इन अस. वी हैव टू बिलीव इन द पावर दैट इज विद इन अस. गौतम बुद्धा, हमारे ईस्टर्न फिलोसोफर जो थे, गौतम बुद्धा हो गए, महावीर जैन थे, और कन्फ्यूशियस थे यहाँ चाइना में. तो ये लोग क्या करते, ये लोग इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से क्लीन तरीके से समझाते थे. और जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, जैसे हमारे जो बेंटिनो मसारो हैं, जो आज के जमाने के हैं, या हमारे जो जोसेफ मर्फी थे, वो सभी के सभी यहाँ पर आए हैं, ईस्ट में आए हैं अपनी फिलोसफीज के साथ. तब उन्होंने मैच करके देखा है ना, कि मतलब चाहे हमारा तरीका कुछ भी हो, चाहे हम लोग कितना ही लॉजिक लगाएं, लेकिन जो हम दोनों के दोनों प्रिंसिपल्स का जो क्रक्स है ना, वो सेम ही है. सो व्हाट दैट इज टू लुक इनटू आवरसेल्व्स, राइट. हमारे अंदर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये रियलिटी है कि हमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो है, या हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, ये इस बुक में क्या लिखा हुआ है, जो हमारा इनर सेल्फ है, उस पर हम लोगों ने भरोसा करना है, उस पर हम लोगों ने कंप्लीट फेथ करना है. वी हैव टू गो इन लाइन विद दैट, तब हम लोग एक ब्लिसफुलनेस को प्राप्त कर सकते हैं, राइट.
यस सुनैना, कहाँ थे हम लोग? ये Most इसके नेक्स्ट people in our culture. या इससे Yeah. नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे, लाइक Okay. Most of us, therefore, huh? या most of us therefore become very goal oriented. We become emotionally attached to things and people outside of ourselves, which we feel we need in order to be happy. We feel there is something missing inside ourselves and we become tense, anxious, and stressed, continuously trying to fill up the gap, trying to manipulate the outside world in order to get what we want. यस, सो बिकॉज हम लोग अपने जो हमारे पावर को रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे अंदर जो पावर है, इसके बजाय हम लोग क्या करते हैं कि ना हम लोग बाकी चीजों पे ध्यान देने लग पड़ते हैं कि ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इसके कारण ये नहीं हुआ। हम लोग बिना अपना माथा पच्ची करे, हम बिना अपना दिमाग लगा के, अगर हम लोग ये इन्नेट पावर जो है इस पे बिलीव करने लगे ना, इसको हम लोग पूरी की पूरी अपनी एनर्जी को कॉन्जोर करके, इन स्पाइट ऑफ गोइंग इनटू द पास्ट, इन स्पाइट ऑफ गोइंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में जाके हम लोग, फ्यूचर में भी नहीं जाना है, क्योंकि फ्यूचर में जाने के बाद ना हम लोग अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। हम लोग ऐसा ऐसा चीजें को इमेजिन करने लग पड़ते हैं कई बार कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि वेयर वी आर ना राइट नाउ। उसमें ना बहुत ज्यादा सीधा फ्यूचर में जाएंगे तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, विराट कोहली ने भी कहा है कि वी हैव टू बी इन आवर प्रेजेंट, learn from the past mistakes and create the future of our own choice, right? तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी लाइफ को जीना है, गोल ओरिएंटेड हमने होना है, लेकिन रकलेसली नहीं। हम लोगों ने अपने पावर को, जिस तरह से हमने सीखा है किस तरह से अपने पावर को यूज करके हम लोग अपने गोल्स के टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने बिलीव करना है। अटैचमेंट नहीं करना हमने किसी तरह से। अब हमको क्या लगता है कि हम अपने फैमिली से अटैच्ड हैं, हम अपने फैमिली से लव करें या अटैच करें, अटैच हो, उसके ना दो, आप बिल्कुल दो मापदंड होते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, बहुत प्यार करते हो, तो यू विल सेट दैट पर्सन फ्री, कि आप उसको अपने, उसके जो विचार है, उस अपने विचार उस पर थोपोगे नहीं, है ना। जैसे मैम ने उस दिन इतने अच्छे से समझाया, कोई पूछ रहा था ना कि हाउ लाइक मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ग्रेटिट्यूड की जर्नी में कैसे लेके आऊं, बट द थिंग इज वी कैन नॉट फोर्स देम टू फॉलो दी इवन दीज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस। हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं सो दैट वो उसको देखे, उनको इंस्पिरेशन मिले कि अभी मेरी मॉम की लाइफ इतनी अच्छी हो गई, तो वाई कांट वी, लाइक हम भी जा सकते हैं इस चीज में, हम भी कर सकते हैं इस चीज को। जब तक हम लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, हम लोग अपनी चीजों को, अपने विशेष को किसी और पे थोप नहीं सकते। ये है लव। लव इज आप किसी को अनकंडीशनली प्यार कर रहे हो। अब जैसे मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार भी अगर हो, मान लीजिए, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में आपका जो स्पाउस है या आपका जो पार्टनर है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो आपको प्यार करे या ना करे, आप उसको प्यार कर रहे हो। अटैचमेंट का मतलब होता है आप ये चाहते हो आपके लाइफ, उसके लाइफ के हर एक पोजीशन में वो आपको आपको पूछे। अगर बच्चे हो तो वो हर कोई काम पूछ के करे, वो उनसे पूछ के नहीं किया तो आप अपने आप इतना खराब फील करोगे, रोना धोना शुरू हो जाएगा कि मेरे बच्चे ने कैसे मुझे नहीं पूछा। अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है तो आपको बताकर थोड़ी जाएगा वो। तो इस तरह से हम लोगों को क्या है ना, अपने आप को अपने अंदर झांकना है। हम लोग अगर किसी को प्यार करते हैं ना, वी हैव टू सेट हिमसेल्फ फ्री, उसको फ्री छोड़ना पड़ेगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे खुद को लगता है कि हम लोगों को, हर किसी को इस चीज को समझने की जरूरत है कि अटैच नहीं होना है। लव इज नॉट अटैचमेंट, लव इज समथिंग वेरी डिफरेंट देन अटैचमेंट। लव में क्या करते हो आप, सरेंडर करते हो, चाहे वो आपका इनर सेल्फ हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल भगवान को अगर जिसको भी मानते हो, या आपकी फैमिली हो, जो भी हो। लव इज सेटिंग दैट पर्सन फ्री। और जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट वो पोजेसिवनेस आ जाता है, क्यों मुझे ही प्यार करे, वो किसी और को क्यों प्यार करे। अगर सास है तो सास क्या सोचेगी, खाली मैं अपने बेटे को ही प्यार करूं या वो मेरा ही सुनता रहे। अरे बेटे की लाइफ में एक लड़की आ गई है, वो उससे भी प्यार करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई है ना। वो अपनी मॉम को भी प्यार करेगा, अपनी वाइफ को भी प्यार करेगा, उसकी अपनी फैमिली भी है। तो हम लोग अगर, अटैचमेंट का मतलब होता है हाँ वी कीप ऑन नागिंग कि वो तो मुझसे पहले पूछ पूछ के हर काम करता था, अब नहीं करता, अपनी बीवी को पूछ के करता है, या अरे मतलब हम लोग ये हमें सोचना पड़ेगा कि दिस इज लाइफ। वो अपनी बीवी को भी नहीं, वो एक्चुअली एक समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहा है दोनों रिलेशनशिप में,
है ना। तो इसीलिए हम लोगों को अपने पास्ट से, अपने जो भी इस तरह के जो पोजेसिवनेस है, इन सब चीजों को होल्ड नहीं करके रखना है हमने। जैसे मैम ने कल भी बोला था कि कोई भी ग्रजेस हो, इवन जब जो इस तरह की हमारी जो फिजिकल चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हो, या हमारे थॉट्स हो, किसी और पर्सन के लव को हमें होल्ड नहीं करके रखना है ना। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वी हैव टू लेट देम फ्री। अगर लाइक कई बार ऐसा होता है ना, कोई मैंने किसी और को भी ये हिदायत दी थी कि वो एक लड़की है, वो किसी लड़के से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वो लड़का किसी और से प्यार करता है ना, अब तो आपको क्या करना है, आप उस लड़के की जगह, उस लड़की की जगह खुद को पिक्चर नहीं करना है। आपने ये देखना है कि उस लड़के की फ्री विल क्या है, राइट। अगर वो आपका है ना, आपके प्यार की शक्ति है, अगर वो आपका प्यार आपका है, उसके माइंड में भी आपके लिए वही फीलिंग्स होगी, उसके मन में भी यही फीलिंग्स होगी, तो वो आपके पास अपने आप वापस आ जाएगा। आपको कोई उसके लिए कोई हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये है, हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को डिटैच करके अपने आप को अपने इनर सेल्फ पे झांकना है, अपने पावर ऑफ नाउ को समझना है। पावर ऑफ नाउ को समझते हुए हमने इसको समझना है कि वी हैव टू बी इन प्रेजेंट and we have to start visualizing the thing what we want in our future, and it's easy। हम लोग जिस तरह से उन्होंने पहले हमें तरीके बताए विजुअलाइजेशंस के, वो करके हम लोगों ने समझना है इस चीज को कि इस तरह से हम लोग अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। और ये ही सभी समझ रहे हैं आजकल। आजकल ये मेटाफिजिक्स के लेवल को इतना ज्यादा कॉमन है, ये मेटाफिजिक्स लोग सभी इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। व्हाट्स दैट, यही कि हर किसी इंसान की, हर किसी ऑब्जेक्ट की, एक नॉन लिविंग थिंग भी है, अगर अगर वो चीज सांस नहीं लेता है, मूव नहीं करता है, स्टिल इट हैज गॉट एनर्जी। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, और उन एटम्स में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स द एंट्रोपी, राइट। तो हमारे इसमें क्या है कि हमने अपने इनर सेल्फ को पहचाने, हम लोग विजुअलाइजेशन की टेक्निक पे हम लोग तनिक भी संशय ना करें, फेथ रखें अपने पावर पर, यूनिवर्सल पावर पर, तब देखना कितने क्लैरिटी से आप विजुलाइज कर पाओगे। जब भी आपको देखा छोटा बच्चा किस तरह से इमेजिन कर लेता है, इतने इतनी ल्यूसिड तरीके से, और इतनी विविड इमेजिनेशन होती है, क्योंकि उसके मन में ना क्वेश्चंस नहीं होते। उसको लगता है कि मैं आंख बंद के रात को 25 दिसंबर की रात में, 24 दिसंबर को मैं आंख बंद करके सोऊंगा तो सुबह उठ के मेरे को सॉक्स में मिल ही जाएगा, क्योंकि वो उसका बिलीफ होता है ना। वो अपना दिमाग नहीं खर्च करता उसमें। हमने भी यही करना है। हमने अपने दिमाग की पावर्स को ना सारे के सारे इसमें लगानी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए, मेडिटेशन से, जैसे इन्होंने भी पहले सिखाया, मेडिटेट करके, एफर्मेशन से, अपने आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करके, अपने आप को ऑटो सजेशंस देके, हम अपने जो एक अच्छा सा अपना फ्रेमवर्क बना के, तब हम लोग अपने डिजायर्ड गोल को और अपने लाइफ जैसी लाइफ चाहते हैं उसको हम लोग पा सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी, है ना। बस हम लोगों को क्या करना है, पावर ऑफ नाउ को समझना है, डिटैच होना है अपनी जो जितने भी हमारे जो भी हमें होल्ड करके रखती है ना चीजें, उनसे डिटैच होना है। और उसके बाद हमने इस तरह से सोचना है कि अपने इनर सेल्फ किस तरह से हमें गाइड करता है, उसको आप पावर दो। अपने इनर सेल्फ से पूछो कि व्हाट वी वांट, जैसे कितने अच्छे से मैम समझाती हैं। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स, है ना। आपको उस रिसीविंग जोन में होना पड़ेगा, ताकि आप उस आंसर को, भगवान की उस क्यू को, या आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके क्यू को आप समझो कि ये है क्यू, उसके हिसाब से आप काम करते रहो। चाहे वो आपके, जैसे कोई बिजनेस डील है, आपको वो डील करनी है कि नहीं करनी है, या आपने जैसे मान लो 12th क्लास में बच्चा है, उसको मेडिकल साइंस लेनी है या फिर आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, लेट हिम डिसाइड दैट, है ना। हम लोगों को वो अपने माइंड से पूछना है। अपने माइंड से जब हम पूछेंगे तो हमें आंसर जरूर मिल जाएगा। आजकल तो होते हैं वो जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो माइंड गेम्स करते हैं कि आपके चॉइस, आपकी चीजें बता देंगे कि ये चीजें हैं, अब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो ये बताते हैं, एनालाइज करते हैं कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट किस चीज में है। सो वो साइकोलॉजिस्ट जो काम कर रहे हैं ना, वो हम भी कर सकते हैं। अपने पावर को हम लोग, अपने पावर को एक्सरसाइज करके, उनको हम लोग यूज करके, हम लोग उसको और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग जिम में जाते हैं ना मसल स्ट्रेंथ के लिए, इसके लिए, उसमें क्या होता है, हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि हम लोग उस मसल को यूज कर रहे हैं ना, इसलिए हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपको पता है एब्डोमेन का जो वो है, वो इतना फैट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे कम जो एक्सरसाइज ना एब्डोमेन की होती है ना। हम लोग उसको उसकी बिल्कुल अपने आप से नहीं कर पाते हैं। अब रिक्शा पुलर्स जो होते हैं, उनकी ये जो मसल्स है ना, वो देख, आप ये देखना, बाइसेप्स उनके कितने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका काम कर रहे हैं।
इसी तरह से मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर को और भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, या इस बुक में जैसे इनर सेल्फ बोला गया है, इनर गाइडेंस बोला गया है, उसको अगर हम लोग और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ना, तो वी हैव टू बी मेडिटेटिंग, वी हैव टू इन्वोक आवर माइंड में हम लोगों को एफर्मेशंस जो पॉजिटिव उन्होंने दी हैं, या हम लोग अपने आप भी कस्टमाइज करके बना सकते हैं अपने एफर्मेशन, उनको रखना है। वो हमारा डोमिनेट थॉट होगा ना, तो हम लोग में इतनी पावर आ जाएगी कि हम लोग अपनी दुनिया को अपने हिसाब से बना पाएंगे, अपने सारे रिश्तों को, अपने मनी का जो भी हमारे मनी का गोल है वो अचीव करना, जो भी अचीव करना है, उन सब का जो पावर है ना वो उसी में है, आपके सबकॉन्शियस या फिर आपके इनर सेल्फ में, और वो हमारे अंदर ही है। कहीं और जाने की हमें जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बस एक कमरा चाहिए, एक शांत माहौल चाहिए, थोड़ा सा अकेलापन चाहिए, उसमें आप सोचो, उसमें आप समझो, और उसमें आप सोचकर अपने के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। या सो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, थोड़ा ही कर पाए, बट स्टिल कल मैम बाकी करवाएंगी। तो या वी हैव टू कंक्लूड दिस सेशन हियर नाउ, एंड इफ वी हैव एनी क्वेरी देन वी कैन ऑलवेज आस्क। एंड थैंक यू so much, Sunaina, for reading so beautifully and calmly. Thank you each and Thank everyone you. for listening to us. Thank you so much. Always blessed. Thank you to Deepti ma'am for giving us this opportunity. Yeah. Thank you Thank so you much. so much to you also for such a wonderful clarified Thank you, session. Priya. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Uh, you. मैम, पूनम मैम या कोई भी अगर ऐड करना चाहेगा, प्लीज यू आर वेलकम टू ऐड योर इनपुट्स इफ एनी वन ऑफ अस हैव एनी। एंड लाइक अगर नहीं तो हम लोग फिर एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं अपने, और अगर वो भी नहीं तो वी कैन लाइक अपना संडे एंजॉय करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लाइक, मेरे को ना मैं भी जब ये चैप्टर जब प्रिया एक्सप्लेन करी थी इतनी ब्यूटीफुली, मैं यही सोच रही थी कि कितना चेंज आया है। अगर ये 2-3 साल पहले मुझे कोई बोलता है ना कि तुम 2-3 साल तो नहीं, 4-5 साल पहले मुझे कोई बोलता ना कि तुम विजुलाइज करिए, तुम अपनी ड्रीम लाइफ लीड करिए, यू आर एम्पावर्ड टू क्रिएट योर ओन लाइफ, मैं मान नहीं सकती थी। बिकॉज हमने हमेशा से यही सुना है कि जो भगवान देता है उसको अच्छे से मतलब जो भी हमको मिलता है, बी हैप्पी इन दैट। जो भी हमको सपोज चैलेंजेस भी आ रहे हैं तो दे आर योर सेट ऑफ चैलेंजेस, यू कांट डू एनीथिंग बट जस्ट लिव देम, थैंक्स टू दिस जर्नी। जब हम आए हैं हमको मालूम पड़ा है कि वी कैन क्रिएट आवर ओन लाइफ इवन इफ द चैलेंजेस आर देयर। हम अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं उन्हीं चैलेंजेस को स्प्रिंग बोर्ड बनाकर। सो इतना मैं भी आज अभी जब प्रिया एक्सप्लेन करती मैं एक्चुअली यही सोच रही थी कि कैसे भी हम इवॉल्व होते हैं। मुझे अच्छे से याद है, मुझे जब मैंने जब जब बुद्धिज्म प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी तब हमें बोलता कि मैं गोल्स लिखो। आई सेड आई कांट आस्क, मैं कुछ नहीं मांग सकती यूनिवर्स से, भगवान से। मुझे लगता है कि जो वो दे रहे हैं मेरे को सोच समझ कर दे रहे हैं, मुझे उसी में खुश रहना है। आई हैव टू बी हैप्पी। अगर मेरे को रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो आई हैव टू बी हैप्पी इन दैट ओनली, इन वॉट एवर स्मॉल और बिग आई एम गेटिंग। बट तब हमने रियलाइज करा कि वी कैन क्रिएट आवर ओन लाइफ। और अब ये बुक्स तो पक्का मतलब जिसे कहते हैं ना इनग्रेव कर रही है कि वॉट एवर वी वॉन्ट इन आर लाइफ वी कैन रियली क्रिएट इट, वी कैन ब्रिंग इट टू आवर लाइफ। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कोई भी चीज हो। And this book, Creative Visualization, is such a powerful technique to get all our desire list, or to also, जैसे आज हमने पढ़ा, to also be detached at the same time love. Beautifully explained by Priya. So thank you so much. And yes, Priya, over to you. Anyone would like to share something? Yeah, just a moment. Another thing that I forgot, ma'am, कि हम लोगों को ना जैसे मान लीजिए कि बहुत लोगों के साथ है, आज भी हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, इवन मैं भी, मैंने कई बार शेयर किया कि मैं भी इस चीज में ड्वेल करती थी कि जब कोई लव वन चला जाता है ना, उस चीज का जो फीलिंग है वो हम लोग सभी समझ सकते हैं क्या है। एट वन पॉइंट और द अदर वी माइट हैव फेल्ट सम दिस काइंड ऑफ इमोशन। तो हम लोगों को पता है क्या करना है, कि हम लोगों को ये समझना है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट, है ना। अगर हमारी लाइफ, एक इंसान की लाइफ हमारे जैसी भी है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। अगर हमारे अवतार भी हुए हैं तो भी वो अपने शरीर छोड़ के गए हैं ना। हमारे जितने भी गुरुज हुए हैं, या महात्मा बुद्ध जैसे एनलाइटेंड सोल थे, है ना, या जो भी थे, वो इस धरती पे हम लोग हमेशा के लिए नहीं आए हैं, राइट। वी कैन नॉट स्टे हियर फॉर एवर।
तो क्या करना है ना, इसी तरह से हमने जितने भी हमारे रिलेशनशिप है ना, जिनके साथ हम लोग बहुत अटैच होते हैं, हम लोगों को उनको हम उनके लिए और भी पता है प्यार कैसे लाइक ला सकते हैं अपने अंदर, जो ग्रजेस है उनको कैसे हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। वो ऐसे कि हम लोग ये समझे कि नथिंग इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर एवर। कोई भी हमारे साथ कोई भी रिश्ता है, चाहे वो हमारे मॉम डैड का हो, हमसे बड़े हैं, वो हमारे लाइफ में परमानेंटली नहीं है। इसलिए जितने भी रिश्ते हैं उनको हम लोग बहुत प्यार दें, बहुत प्यार से उनसे डील करें, है ना, और अपने लिए रिस्पेक्ट लाएं। तभी ना हम लोग एक ब्लिसफुल लाइफ को जी सकेंगे। क्योंकि अगर हमने किसी चीज के साथ अटैच कर लिया ना अपने आप को, हम लोग सोचते हैं कि यार बंदे को ग्रांटेड ले लेते हैं, आज अगर मम्मी को डांट दिया तो क्या, वो कल तो है ही ना, वो कहाँ चली जाएगी। नहीं, मतलब वो हमेशा के लिए नहीं है हमारे पास, वो कल को जा भी सकती हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरल। यही लाइफ है कि हमारे हर कोई जो ऑर्गेनिज्म है ना, हम चाहे ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या फिर जो हमारे जो मैनमेड चीजें हैं वो हो, या जो भी चीज हो, एवरीथिंग इज गोइंग इनटू एंट्रोपी एंड सिंगुलैरिटी में, है ना, सिंगुलैरिटी से हुए हैं, है ना, और सिंगुलैरिटी में ही हम लोगों को जाना है। सो हम लोगों को ना वो परमानेंट जो है ना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ, वी डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू एनीथिंग। दैट्स व्हाट, लाइक किसी भी रिलेशनशिप को भी इस तरह से होल्ड नहीं करना चाहिए, एंड अपने आप को सरेंडर करके खूब सारा प्यार दें सबको, और जो भी हो जाए ना उसको एक्सेप्ट करो अपने लिए, अपने फ्लॉज के साथ भी खुद को एक्सेप्ट करें, औरों को भी उनके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करें। मम्मा हो सकता है चिक चिक करती हूँ, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके पास नहीं है, हमेशा आपको उनका चिक चिक या प्यार सुनने को नहीं मिलेगा। आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, कोई भी सभी। तो इसीलिए नथिंग इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर परमानेंट, से कुछ नहीं होता। सो हम लोगों को किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, लाइक ये वाला चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग ये सोचते हैं कि ना वो है, कल तो है ना हमारे पास, आज का दिन अगर वेस्ट हो गया तो क्या है, वही वाली बात है ना कि काल करे सो आज कर, वही वाली चीज है। जो चीज हमने जो कल को होना ही है उसको आज हम लोग समझे, और उस रिश्ते को प्यार दें, उस पर्टिकुलर चीज को प्यार दें, अटैचमेंट नहीं, प्यार, है ना वो। मतलब दिस थिंग को एग्जिस्ट, लेकिन अटैच जहां ज्यादा हो जाते हैं वहां पे फ्रीडम नहीं रहता है। हम लोगों को दिमाग में फ्रीडम लाना जरूरी है। इसके लिए लव को हम लोगों को एम्फेसाइज करना पड़ेगा, other than emphasizing on the attachment thing. Yeah, no, thank you so much. Thank you. Yeah, Thank Sunaina's you. hand is raised. Yeah, हाँ जी, bolo Sunaina. सुनैना's hand is raised. अ, मैंने ना कहीं पे लाइक शिव पुराण में कहीं पढ़ा था, जैसे आज रिलेशन अटैचमेंट्स की बात हो रही है, तो दो चीजें बोली गई थी कि आपको कैसे पता लगता है कि आप किसी से अटैच्ड हो या डिटैच्ड होके भी अटैच्ड हो। वो बेसिकली हिंदी में बता रही हूँ कि उन्होंने बोला था कि आपको ये देखना है कि ये आपका संबंध है या बंधन है। आपका किसी से जो भी अटैचमेंट है वो किसी उसके लिए वो एक रिलेशनशिप है या एक बर्डन है। सो संबंध और बंधन, ये मैंने पढ़ा था। Yeah, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा absolutely. आपका रियलिटी चेक होता है कि आर वी इन अ रिलेशनशिप और आर वी इन अ अटैचमेंट, मतलब जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। सेकंड, पावर ऑफ नाउ में मैंने ये पढ़ा था कि लाइक हम कैसे प्रेजेंट में रहना सीख सकते हैं, उसकी सबसे एक शॉर्ट एक्सरसाइज होती है कि आप एक दिन में सबसे पहले कोई दो घंटे पिक कीजिए कि मैंने इन 2 घंटों में सिर्फ इसी मोमेंट में रहना है। माइंड इधर उधर जाएगा, फिर वापस लेके आओ। तो 2 घंटे को 4 घंटे, 6 घंटे, फिर ऐसे ऐसे आप एक दिन पूरा दिन उसी नाव में रहते हो, मतलब उसी दिन में रहते हो, उसी मोमेंट में रहते हो। और ये मैंने पर्सनली ट्राई किया है, एंड अब मुझे मतलब ये आ भी गया है। लाइक जो भी हम लोग, जैसे प्रिया ने बोला ना कि प्रेजेंट में रहना, सो इट इज लाइक यू कैन ऑलवेज डिवाइड अ डे एंड ट्राई इट विद 2 आवर्स। ओके, मैं 2 घंटे के लिए इन्हीं 2 घंटों में ही रहूंगी। फिर आप इसको धीरे धीरे स्ट्रेच करके 1 डे, 2 डेज, और ये आपकी फिर कब लाइफ टाइम का एक वो बन जाएगा पैटर्न, आपको पता ही नहीं लगेगा। मतलब आपके सिस्टम में, सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन्ड हो जाएगा। थर्ड चीज थी, एक प्रिया ने बताया था ना, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन, लाइक कि अपने अंदर वो कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन इज लाइक आत्म मंथन। अपने बेसिकली जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कितनी चीजें निकली थी, तो नेगेटिव चीजें भी निकली थी, पॉजिटिव भी। मैंने इस पे भी वर्क किया हुआ है, इंट्रोस्पेक्शन जिसे बोलते हैं ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो जब आप ये करते हैं तो उसपे क्या होता है, जब आप इट्स जस्ट लाइक जब आप लस्सी बनाते हैं तो यू हैव टू वो क्या होता है प्रिया, वो जिससे निकाल, उसको क्या बोलते हैं, मक्खन, ऐसे। मक्खन, जब हाँ, वो ऐसे से जब सेंट्रिफ्यूगेशन। कर, हाँ, तो उसमें क्या होगा कि आपका नेगेटिव चीजें भी निकलेंगी। सो उन नेगेटिव चीजों का आपने पैरेलल पैरेलल आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चंस भी निकलेंगे तो उन क्वेश्चंस के इमीडिएटली अगर आप आंसर्स ढूंढते हो
तो देखना आपका क्लैरिटी हो जाएगी, जैसे वो चीज बिल्कुल ऊपर आ जाएगी जो आपको चाहिए। सो व्हेन यू गो फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, positive and negative both comes out. Even in meditation also, positive and negative both comes out, but you have to accept everything. नेगेटिव को आंसर कीजिए और पॉजिटिव को एक्सेप्ट कीजिए। सो ये मेरी अपनी पर्सनल की हुई चीजें, मतलब खुद पे मैंने किया है, दैट्स व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मे बी आपको हेल्प मिलेगा मेरे शेयरिंग से। या बिल्कुल बिल्कुल, शेयरिंग्स आर ऑलवेज केयरिंग, यू नो, शेयरिंग से तो आप केयर करते हो तभी तो शेयर कर रहे हो। या थैंक यू सो मच सुनैना। अभी हमारे प्रिया का हाथ रेस्ड है, प्रिया और दीपा एंड सरोज जी का भी हाथ रेस्ड है, तो फिर आप बोलिए एक एक करके, म्यूट करके अनम्यूट करके अपने आप को। या हेलो। यस चलो मैम। दीपा दीदी आप बोलो पहले। ओके। प्रिया दीदी नमस्ते। हेलो, कैसे आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे को ना ये हाय, गुड पूछना था मॉर्निंग। कि हाँ, मुझे ये पूछना था कि कई बारी ना हम लोग को ना फियर आ जाता है, चाहे हम मैम ने बताया था कि थैंक यू उस टाइम पे लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन कई दफा फियर आ जाता है और उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा माइंड कॉन्शियस नहीं रहता, घबराहट ये वो, तो फिर से उसी जोन में चले जाना, फिर दोबारा लेकर आना, तो वो कैसे चीज को ठीक करे? उस चीज के लिए ना देखो, सबसे पहले हम लोगों को ना मैम ने भी बताया था, बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक बताई थी, है ना, कि हम लोग जब ब्रीदिंग करेंगे, दो तरीके, कई तरीके हैं उस चीज के, पता है। आप लोग सबसे पहले अपनी जगह चेंज कर लो। लाइक आपको अपने आप को किसी और जगह पे लेके जाओ, चाहे नेचर में लेके जाओ, चाहे अपना रूम चेंज करो, अपनी पोजीशन को चेंज करो। बेसिकली जो मूवमेंट है ना, उससे भी आपका, आपके खाली मूवमेंट आपके बॉडी को ही नहीं, कुछ हद तक आपके माइंड को भी शिफ्ट करता है ना। आप दूसरे कमरे में चले जाओ, कहीं अपना जगह चेंज करो। अगर किसी बंदे के लिए कोई फियर आ रहा है तो आप दूसरे जगह में जाके आप शांति से ब्रीदिंग करो। शांति नहीं आएगी, लेकिन डेलिबरेटली करना पड़ेगा। ब्रीदिंग एक इतना अच्छा टेक्निक है ना, वो बॉक्स ब्रीदिंग मैम ने बताया था, 4-4-4 वाला, वो भी बहुत अच्छा है। और एक और ब्रीदिंग बहुत अच्छी है, जो स्पेशली अगर इस तरह से हम लोग करें कि जितना देर हम लोग जो है ना इनहेल करते हैं, उतनी ही देर हमने उसको होल्ड करना है, उतनी ही देर में, उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम में हमने एक्सेल करना है। इस तरह की एक 4-7-8 ब्रीदिंग भी होती है, 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। उसमें क्या करते हैं हम लोग, 4 सेकेंड में के लिए अपने इनहेल करते हैं, 7 सेकेंड्स को उस ब्रेथ को होल्ड करते हैं, और 8 सेकेंड में हम लोग उसको एक्सेल करते हैं मुंह से, है ना। तो इससे क्या होता है ना, हमारा दिमाग जो है ना, इसको ब्रीदिंग को सोचने में ही कि हम बिजी हो जाएगा, सांस लेने में ही बिजी हो जाएगा, उसको निकालने में बिजी होगा। तो जो फियर वाला जो फैक्टर है, उसको उस मोमेंट के लिए हम लोग आइसोलेट कर देते हैं, वो क्वारंटीन कर देते हैं उसको, वो थोड़ा टाइम के लिए दब जाता है। और अगर हम रेगुलरली इन ब्रीदिंग्स की, चाहे वो बॉक्स ब्रीदिंग हो, बॉक्स ब्रीदिंग में क्या करना पड़ता है, एक तो 4-7-8 बताया, एक होता है बॉक्स ब्रीदिंग। उसमें क्या है ना, हमने 4-4-4 मतलब 4 बार, 4 सेकेंड के लिए इनहेल किया, 4 सेकेंड्स में इनहेल किया, 4 सेकेंड्स तक होल्ड किया, 4 सेकेंड्स में जो आपका पेट पिचक जाता है ना, जब हम बेली ब्रीदिंग करते हैं तो पेट पिचक जाता है, तो उसको होल्ड किया, और फिर अलग उसके बाद वाले 4 सेकेंड्स में हमने उसको एक्सेल किया। तो इसमें क्या होता है, सारा का सारा जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो भी हमारे थिंकिंग्स है, जो भी हमारे दिमाग में जो नेगेटिविटी, फियर क्या है, नेगेटिविटी तो है, वही चीज जो हमारे दिमाग में घूम रही है ना, उसको एक चांस मिल जाता है, वो कहीं और जाके चुप जाता है। तो हम लोगों को ना एक सोचने को मिल जाता है कि हाँ भाई, अभी वी हैव टू गो फॉरवर्ड, है ना। हम लोगों को किसी भी फियर को, फिर फियर जो है उसका ऑपोजिट करने की कोशिश करो, कि अगर फियर आपको लिमिट कर रहा है ना किसी चीज को, वो आपको कंफर्ट में रहने के लिए बोल रहा है, तो आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकलना है। उसके लिए सबसे पहले ब्रीदिंग, मुझे तो लगता है ब्रीदिंग एंड मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को उस जगह से ड्रिफ्ट करो और ब्रीदिंग करो, उसके बाद तो हम लोग जो भी अपना गाना सुन सकते हैं, क्योंकि डेलिबरेटली करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा। अपने आप अगर हो जाएगा तो फिर हो जाता, तो फिर आपके क्वेश्चन ही नहीं होता, पक्का ये अपने आप नहीं होता है। इसलिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कुछ भी करे नहीं जाता, तो उसके लिए बस हमने यही करना है कि खाली हम लोगों ने अपने आप को मूवमेंट में करना है। जैसे कि मैम भी बोलती हैं, एक्सरसाइज से हमारे वो हैप्पी वाले हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं ना, मूवमेंट करने से ही हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको रिगरस कोई एक्सरसाइज करना पड़ेगा उसके लिए, आप जस्ट मूव करो, वॉक अराउंड थोड़ा सा करो, थोड़ा जितना देर, मतलब 3 मिनट्स, 3 मिनट्स का, है ना, लिखा हुआ है कि 3 मिनट्स में आप कर, 7 मिनट्स का हमारे उसमें आस्क एंड नाउ गिवन में लिखा हुआ है कि 7 मिनट्स का आप लोग अगर करोगे, उसके बाद आपका जो माइंड जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है। तो फियर जो भी आ रहा है, फियर के अगेंस्ट वाला काम करो, तो फिर आपको देखना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चीज को, उस फियर को फाइट करने में।
एंड लाइक अगर और कोई इसमें ऐड करना चाहता है तो प्लीज कर सकते हैं. नहीं दैट्स प्रिया, माय बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव. से करना है, बट करा है एक्चुअली ऋतु. जितना नेचर हील्स अ लॉट, मैंने बहुत हीलिंग करी नेचर में. एंड जैसे प्रिया ने बोला चेंज करो प्लेस, बट व्हेन यू नेचर में होते हो ना, पेड़ में जहाँ आसपास बहुत ग्रीनरी है, वहां पर जाकर जब आप मूवमेंट करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, आप बहुत जल्दी आपका मतलब हील होता है आप. Can I add something? हाँ जी, बोलिए. Yeah, thank you so much. A heartfelt gratitude towards all of you who are explaining so well and clarified thoughts process are there. Yeah, now actually अभी मेरे को ना पूनम दी वगैरह सब explain कर रहे थे, तो just I wanted to add one thing कि प्रभुपाद जी जो है भागवत गीता एज इट इज उन्होंने लिखी है इस्कॉन के संस्थापकाचार्य. उन्होंने एक श्लोक लिखा है चैप्टर नंबर 13.9, चैप्टर नंबर 13 एंड श्लोक नंबर 9 इज देयर. तो उसमें लिखा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. द बॉडी इज सब्जेक्ट टू इट्स ओन प्रिंसिपल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, but one who is situated in spiritual life has no birth, no death, no old age and no disease. तो जैसे प्रिया दीदी, पूनम दी, सुनैना दी सब एक्सप्लेन कर रहे थे, तो जस्ट मैं इसमें ऐड करना चाह रही थी कि भाई कोई भी चीज है जो रिलेशन है, चाहे कोई हमारे कोई से भी रिलेशन है, ये सब यहीं पर बने हैं. मतलब लेकिन वी आर द सोल ऑफ दैट गॉड ओनली, दैट यूनिवर्स ओनली. मतलब जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, वेदर इट इज कृष्णा और हनुमान जी और सन और एनीथिंग. बट इसमें प्रभुपाद जी ने अपना जो स्पेसिफिकली बोला है कि कृष्णा इज द यूनिवर्सल सोल, लाइक कृष्णा इज द होल यूनिवर्स फॉर ऑल ऑफ अस. तो दैट इज सेड बाय प्रभुपाद जी. सो दिस इज माय लाइक थॉट प्रोसेस, लाइक कि उन्होंने जो बताया है उसमें, तो दैट आई वांटेड टू मेंशन इट. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग थैंक यू सो मी मच प्रिया. अपॉर्चुनिटी. या थैंक यू सो मच प्रिया. एंड हम जल्दी से शेयरिंग लेते हैं. दीपा का हैंड रेस था, और दीपा एंड वही सरोज जी बोल का रही भी हूँ. hand. हाँ, सरोज जी का हैंड रेस था. सरोज जी का हैंड रेस देखा मैंने भी. सरोज जी बोलिए. हेलो. और हेलो सामने आकर सरोज. बोलिए. हम या सरोज जी आपकी वेट ही करते हैं कि आप कैसे हंसकर वो आप आओगे सेशन में. आपकी जो इतनी सुंदर लाफ है ना. अफेक्शन फैला दो हमारे सब में. एंड एंड हंसने वाला कंग्रेचुलेशन सरोज जी, कंग्रेचुलेशन सरोज जी. बहुत आपकी इतनी चाइल्ड ब्यूटीफुल लाइक है शेयरिंग. इनका. गिगल्स चाइल्ड लाइक है, जैसे जब भी मैं वेरी हंसी आ चाइल्ड जाते लाइक. हैं. वो एकदम से बहुत सोचकर ही ज्यादा. हंसी आ जाती है. एक्चुअली सुनैना सही कह रहे हो आप. सुनैना तो थैंक वैसे भी यू. चॉइस ऑफ वर्ड्स ऑफ सुनैना इज सो बट नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन. मैंने कल ग्रुप में भी शेयर किया था कि मेरा एग्जीबिशन था कुछ. ऑल ऑफ सडन ये सब कुछ हुआ. मुझे पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे लाइफ एकदम से मैजिक की तरह चेंज हो रही है. और मतलब इतना रिकॉग्निशन. और पता है, कल मैं वहां गई हूँ तो अ, कितने लोगों ने, मतलब जिनको मैं कभी देखा नहीं, कभी मिली नहीं, वो लोग मुझे कह रहे थे कि हमें वहां से फोन आया था, उधर से फोन आया था कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो बहुत अच्छा वो कर रही है. मैं तो आपको वो तो अवार्ड भी मिला है. कल मैंने देखा आपकी फोटोग्राफ, इतनी अच्छे लग रहे हो आप. तो कल जो एग्जीबिशन में जो बेस्ट था उनका, उन्होंने उनको भी अवार्ड दिया. और उसमें उस जूरी में सोचो, मेरी बेटी की प्रिंसिपल भी थी, जो शुरू से ही मेरी बेटी को सपोर्ट्स में, मैंने आपको बताया था ना पहले, मेरी बेटी ताइक्वांडो खेलती रही है, तो उसके लिए वो बहुत उनको सपोर्ट करती थी. तो वो मुझे देख के वो हैरान भी थी, और फिर वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. कि मैंने उनको बोला कि मेरी न्यू जर्नी है, मुझे अभी कुछ कुछ ही मंथ हुए हैं ये सब करते हुए ना. तो सब लोग हैरान हो रहे थे कि आप इस लेवल तक भी आ गए हो. तो बड़ा अच्छा लग रहा था. और वो एक रिकग्निशन मिलना. और और मैंने आपको सबको, मैं मुझे मतलब ऐसे नहीं लगता कि ये सब अपने आप में कर रही हूँ. मुझे सब पता लग रहा है कि ये सब यूनिवर्स ही कर रहा है मेरे लिए. इतनी किसी की औकात नहीं होती कि कोई 2-3 महीने पहले ही काम करना कोई शुरू करता है ना. और फिर मैं उसको रजिस्टर, अभी मैंने क्या किया आपको मैं बताना चाहती हूँ, कि मैंने राजी क्रिएशन करके कंपनी फॉर्म करनी
मतलब स्टार्ट कर दी है, जिसका पेपर वर्क अभी चल रहा है। मैंने अभी सीएस से बात की, तो वो जीएसटी के लिए बोल रहे हैं कि आपको जीएसटी के बाद फिर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर आप इसको अपना ब्रांड बना सकते हो। और ये चीजें कभी मैं लाइफ में कभी इमेजिन ही नहीं की थी। मैं कभी किचन से बाहर ही नहीं आई थी अपनी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस लेवल पे कुछ करूंगी। और अभी बहुत सारी चीजों के ऊपर एक साथ काम कर रही हूँ मैं, और वो एकदम से सब कुछ सामने सामने हो रहा है। और ये इतनी अच्छी रिकॉग्निशन मुझे मैं क्या बोलूं अब इसके लिए मुझे। आप Lots of आप congratulations इतने to you. आप प्योर बहुत हो ज्यादा ना इमोशनल और आपकी। हाँ, आप बहुत प्योर हो, बहुत एनर्जीज आपकी बहुत इतनी ज्यादा। अच्छी है। हाँ आप वही। मतलब आपने पता नहीं क्या क्या करना है अभी। आप देखना, बस हमें अब भूलना मत। बस जब आप बहुत हाउ बड़े मत करना। बिजनेस एंटरप्रेन्योर विमेन का अवार्ड लेने जाओगे तो प्लीज है ना बताना। या सुनैना भी बोलती थी, मैंने प्रिया भी बोलती सरोज जी का थी। याद आ रहा था, मतलब रियली फ्रॉम वेयर टू वेयर। थैंक यू फॉर बीइंग हाँ, इंस्पिरेशनल सरोज जी, या really। थैंक Thank यू you सो so मच much. ऑल ऑफ यू। और अपने ग्रुप में से भी कल मुझे इतनी ज्यादा वो मिल रही थी ना कि वहां जाके मुझे, मैं पहले से ही कॉन्फिडेंट हो गई थी कि अवार्ड मुझे ही मिलेगा। और वो बिल्कुल मिलना ही था आपको। Yes. मैम वो एफर्मेशन देती ना, और यू आर born to win, you are always born to win, you are like, or you are born to have an amazing life। तो वही है ना, आपकी लाइफ तो अमेजिंग